So yes guys, that's the Aprilia RS457. Let's do a quick walk around and then we'll go on a ride and checking out this machine. कितना potential है. Let's do it. Okay, so let's begin with the front area itself and looks. So overall, अगर मैं front side से मैं बात करूँ तो this is the most good looking motorcycle. If you are fan of RS V4, then yes, this is the baby version of RS V4. And actually में ये उससे काफ़ी ज़्यादा inspire है in terms of design, in terms of lots of things. And we have lots of color in this motorcycle, not lots of but some good colors in the motorcycle. One is this white and one is here the maroon kind of a color जो धूप में थोड़ा और निखर के आएगा. One the matte black color is outside of it, हम उसको राइड करने वाले हैं. And one is this white color. My favorite is the matte black and the white color. Right. एक बार मैं lights on करता हूँ. Yes, this is the full LED setup वाला motorcycle. And look at the lights. So ये जो DR है ना, it looks so damn amazing. अंदर lights है, यहाँ पर भी एक छोटी सी lights है और ये आपका air intake है and this is functional air intake which is provided in the motorcycle. Segment की अगर मैं बात करूँ तो this is not your hardcore sports motorcycle but this is the sports tourer segment motorcycle. At least company is saying that this is the sports tourer motorcycle, right? बट जिस तरह का परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करती है, जिस तरह का इंजन इस बाइक में मिलता है, this looks like amazing literal sports motorcycle. Now let's talk about the suspension here. The suspension, you are getting the 41 mm USD forks which is really amazing. Gabriel के suspension यहाँ पर आपको देखने को मिलता है which is again a good part. If we are talking about the tires, so yes 110-17 के टायर्स आपको फ्रंट में मिलते हैं. 4 piston Burberry के डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं which is again a good part and a good package in terms of the design element and the safety element. Now if we are talking about the tank capacity, so 13 लीटर का टैंक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. Now let's talk about the final thing is the engine. So it has very amazing beautiful cross plane twin cylinder engine which is so damn amazing. इसकी अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो बहुत ही मज़ेदार फीचर्स के साथ आता है ये इंजन. 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं. 43.5 Nm का टॉर्क मिलेगा. 47.6 bhp जनरेट करता है ये पावरफुल इंजन. और अगर एक स्पेसिफिक चीज़ की मैं बात करूँ इस इंजन में तो 2500 RPM तक सिंगल सिलेंडर वर्क करेगा. उसके बाद दोनों सिलेंडर खुलेंगे और यू विल फील द पंच ऑफ द बाइक, जो कि राइड वाले पार्ट में मैं आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. येस, इट हैज़ दी असिस्ट स्लीपर क्लच एंड क्विक शिफ्टर. एडिशनली आप डलवा सकते हो, इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरी जो कि बाइक के साथ नहीं आता है. यू हैव टू बाय दैट. सो या दैट्स होल द इंजन पार्ट. Rear you are getting this monoshock suspension. The rear wheel is again 150/17 का and rear also the LED lights and which look like something like this. So yes, there is also one good rear backlight in the motorcycle. So yes, that's the overall motorcycle walk around. The second base part is this frame. So yes, this is the aluminum frame which makes motorcycle very lightweight. 175 kg का ये बाइक है. अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 160 mm एंड सीट हाइट 800 mm के आसपास की इसकी सीट हाइट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि लाइव भी मैं कंपेयर करके आपको थोड़ी देर में बता दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. सो यस, दैट्स द ओवरऑल टेक specifications about the motorcycle. Now let's check out the console, but before that let's check the seat height actually. So yes, now let's compare the height and the ground clearance. 800 mm का जो height है वो कुछ इस तरह से आपको feel होगा as I mentioned earlier. And when you grab the handlebar and this is kind of your sitting position, my legs like this, and अच्छा खासा ground clearance भी मिल रहा है and seat height is so comfortable that आपके दोनों legs perfectly fit होंगे. But यहाँ पर मेरी height as you all know it is 5'11", so उस हिसाब से आप अपने height के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके लिए कितना ज़्यादा comfortable रहेगा. ये इसकी पोजीशन रहेगी. दिस इज़ नॉट टू मच एग्रेसिव एंड काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स टूर सेगमेंट. एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज द स्पोर्ट्स टूर सेगमेंट. लॉन्ग टूर्स पे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा फॉर यू. दैट्स द हेड कंपैरिजन एंड द ग्राउंड क्लियरेंस. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स चेक आउट द कंसोल एंड द अदर स्टफ. सो यस, कुछ इस तरह की आपको इस बाइक में दिख रही है. वेरी बेसिक काइंड ऑफ अ की, नॉट दैट टू बल्की थिंग, ओनली Aprilia written on that.
सेंटर में आपको यहाँ पर की होल मिल जाता है, यहाँ से ये ओपन ऑन हो जाएगा एंड इट हैज़ दिस अमेजिंग TFT डिस्प्ले विच इज़ द लार्जेस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट। एक बार पहले स्विच लेआउट्स वगैरह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर यू आर गेटिंग बिट डिफरेंट स्विच लेआउट, इस तरह का आपने KTM में ज़्यादातर देखा होगा। सो 4 बटन्स है, यहाँ पर आपका साइड लाइट मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे हॉर्न है, कुछ इस तरह का हॉर्न है, यहाँ पे पासिंग स्विच आ जाएगा। दिस इज योर क्लच लीवर विच इज़ नॉट एडजस्टेबल, जो कि मुझे लगता है कि इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल में अब कॉमन हो चुका है, तो अगले वाले अपडेट में दे देना एप्रिला। थैंक यू। कुछ इस तरह का टी लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। द एप्रिला लोगो इज हियर, एप्रिला इज हियर, लॉट्स ऑफ एप्रिला। हियर यू आर गेटिंग दिस अमेजिंग टाइनी सा इंजन किल ऑन ऑफ स्विच। इस तरह का कुछ स्विच आपको देखने को मिलता है। साइड स्टैंड ऑन है तो बाइक चालू नहीं होगी। नाउ वी कैन स्टार्ट द मोटरसाइकिल इफ वी क्लच इट, राइट। सो अभी चालू नहीं करते, यहाँ से यू कैन चेंज द मोड। अब मोड वगैरह क्या है, क्या कुछ है, सारा का सारा समझ लेते हैं इन डिटेल हियर इन द मोटरसाइकिल। So yes, as you can see currently it's in a sports mode, right? और ट्रैक्शन कंट्रोल 1 पर है। When you press this button, see, तो ट्रैक्शन मोड चेंज होगा। यहाँ पर इस बटन को प्रेस करने से ये स्पोर्ट्स मोड में ट्रैक्शन 2 पे चला गया। दिस इज 1 एंड ऊपर जाओगे 2 एंड 3 एंड 3, तो ट्रैक्शन 3 मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड है, यहाँ पे आप अगर प्रेस करोगे एक बार तो मोड चेंज होगा लाइक दिस इज द इको मोड। तो टोटल 3 मोड्स है, स्पोर्ट्स, इको एंड रेन। अब जहाँ तक मुझे पता है स्पोर्ट्स मोड में ये फुल पोटेंशियल पे बाइक चलने वाला है ऑन दिस मोड। इफ देयर इज इको मोड तो यहाँ पर 75% पे चलेगा। रेन मोड में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह का हिसाब से और 60 to 65% पोटेंशियल पे बाइक चलेगा। मजेदार बात ये है कि हर एक मोड में यू कैन स्विच द ट्रैक्शंस, राइट। फॉर एग्जांपल इन द रेन मोड यू कैन स्विच टू द ट्रैक्शन 2 or 1 or whatever you like. The one more best part about this motorcycle is you can switch the ABS from here. Long press this and see. So जैसे आप इसको करोगे rear ABS disabled, ठीक है, तो rear ABS लॉक हो गया है। अब सिचुएशन क्या है कि रेन मोड में है, ट्रैक्शन कंट्रोल 1 पर है और rear ABS बंद है। अब मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ स्पोर्ट्स मोड में एंड ट्रैक्शन कंट्रोल 3 पर है। तो दैट्स द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर पूरा का पूरा बहुत ईजी लेआउट है। दिस इज योर गेयर, दिस इज स्पीड आ जाएगा, ये आपका RPM आ जाएगा, बाकी आपका फ्यूल, ABS ऑफ है ऑन है, ये सब यहाँ से दिखेगा। साइड स्टैंड का सिंबल, यहाँ पर इंजन का टेम्परेचर, टाइम, ये टेम्परेचर आ गया, यहाँ पे ओके लिखा हुआ है। इंजन ठंडा है अभी, ठीक है, ये हो गया। अब द मेन थिंग इज द अनदर लेआउट। तो ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, यहाँ से ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि इंजन में यहाँ पे मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल आप जैसे इस बटन को क्लिक करोगे ऐसे, तो देखो ये चेंज होगा। अब ये पूरा बाइक का लेआउट दिख रहा है, ठीक है। अभी ये ऐप से कनेक्टेड है तो पूरा वोल्टेज वगैरह, बैटरी का, आपका सर्विस का रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया। अगर एक और बार मैं इसको साइड में प्रेस करूँगा, अगेन कंसोल स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। अभी ये ऐप से कनेक्टेड है किसी और के फोन से, मतलब शोरूम में फ़ोन से कनेक्टेड है, तो ऐप का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐप से कनेक्टेड हुआ तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, कनेक्शन करने का दिखाएगा। यू कैन पिक अप द कॉल एंड ड्रॉप द कॉल फ्रॉम हियर। You can change the music and everything from the console only. 5 इंच का TFT डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा वर्किंग है, मतलब काम का है, ठीक है। ये आपका टोटल ट्रिप वगैरह, किलोमीटर्स, सब कुछ यहाँ पर आपका मेंशन हो जाएगा। सो यस, फुल्ली informative console you will get in this amazing motorcycle. So yes guys, finally it's time to ride this amazing motorcycle and let's see कैसा है राइड पे। ओके गाइस, सो यस वी हैव अ मोटरसाइकिल और फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा है कि हैंडल बार, इट इज़ सो डैम वाइड यार, इट इज़ सो डैम वाइड। पर हाँ, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा तो टर्निंग में मे बी। एंड दूसरा देखो, अभी ना कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि मुझे लगता है कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत है। लीवर्स को एडजस्टेबल कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। सस्पेंशन बहुत सही है, प्रीलोड वाला है तो मज़ा ही आ जाएगा। और मिरर्स चेंज कर सकते हो, मिरर्स बहुत मुझे लगता है छोटा है, विजिबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। नाउ लेट्स चेक आउट दी, ओह माय बॉय, परफॉर्मेंस बोलने से पहले तो बाइक परफॉर्म कर रही है। ओके, वन थिंग दैट आई ऑलरेडी मेंशन अर्लियर विच इज़ दी 2500 RPM तक ये सिंगल सिलेंडर इसका काम करता है। एंड देन दूसरा सिलेंडर चालू एक्टिव हो जाएगा और 3000 RPM तक तो ये बाइक अपने 80% पोटेंशियल पे आ जाती है। तो देखने वाली चीज़ तो होगी। लेट्स सी कि हाउ दैट थिंग गोज एक्चुअली। बॉय
भाई मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग परफॉर्मेंस में तो हल का लग रही माय बॉय रियली ब्रो एंड द गियर शिफ्टिंग इज डैम अमेजिंग थिंग Damn, this is crazy shit, bro. थोड़ा चला तो फिर बताता हूँ फीलिंग्स. This is a damn mean machine, bro. Oh. I cannot literally express my feeling about this damn machine. So, see, people are very excited about this motorcycle, specifically the engine and the performance. Everyone is talking about the crazy performance of this motorcycle, and even I am also excited for the performance of this particular motorcycle. And you know what? I am just in love with the performance of this beautiful machine. क्योंकि कैसा है कि स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट है, मैं फ़ैन रहा हूँ स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट का, और बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है करंटली इन द इंडियन मार्केट, एंड दिस वन इज़ ट्रूली गुड ऑप्शन. द गियर शिफ्टिंग, द थ्रॉटल रिस्पॉन्स, राइट बाय वायर है तो फिर क्या ही मज़ा आएगा. वी ऑल नो दैट. ट्रू. सो या इट इज़ लाइक इट अमेज मी विद द परफॉर्मेंस. अब ये बाइक किसके लिए है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं. राइड रिव्यू आई नो मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, लॉन्ग राइड रिव्यू मैं प्लान करूँगा इस बाइक का, क्योंकि इसका लॉन्ग राइड रिव्यू बनता है ना, पर उसके लिए यू गाइज हैव टू वेट फॉर सम टाइम. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई किसके लिए ये बाइक है, एंड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा. Initially when we start riding this motorcycle, I point out some things जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ किया जा सकता है, जो मैं फिर से एक बार ब्रांड को मेरी तरफ से थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ कि भाई इसका थोड़ा एडजस्टेबल लीवर का करो, थोड़ा और मज़ा आ जाएगा. प्रीमियमनेस थोड़ी सी मेरे को लगता है कि बढ़ सकती है उससे. अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट थिंग इज़ दी हैंडलिंग. भाई क्या ईजी मैन्यूवरिंग है इस बाइक का, क्या स्मूथ जाती है. ट्रैक्शन 1 पे है, स्पोर्ट्स मोड एक्टिव है, एंड द वे दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स वाज लिटरली क्रेजी. यू कैन सी द पावर डिलीवरी. बॉय आवाज़ सुना. तो दिस इज़ द रियल पोटेंशियल ऑफ दिस मोटरसाइकिल. अब ये बाइक किसके लिए है, लेट्स टॉक अबाउट इट, है ना. देखो, ये मुझे पर्सनली लगता है ये सेमी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है. सेमी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान के चलो कि 500 सीसी का बाइक है, क्रॉस प्लेन ट्विन सिलेंडर दिया गया है, एंड पावर फिगर्स देखें तो 46.7 और 6 bhp एंड समथिंग अराउंड टॉर्क है. तो ये इसको कंप्लीट ट्रैक मशीन कहीं ना कहीं बना देता है. उसके साथ साथ अगर मैं इसके सीटिंग पोस्चर की बात करूँ लाइक दिस, तो what I feel is that this is the amazing, let me mention amazing स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल. आप इसको टूर पे लेके जाओ कहीं पे भी लंबा, है ना, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस पे टूरिंग करने में. सैडल वैडल लगाओ मस्त एकदम चिल मूड में, एंड ये बाइक आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट मुझे तो नहीं लगता है कि करेगी. राइट.
करंटली इन दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल क्विक शिफ्टर इंस्टॉल है. अब क्विक शिफ्टर का सीन ये है कि ये दिस इज़ पार्ट ऑफ एक्सेसरी, यू हैव टू परचेज इट सेपरेटली. देखो ये टर्निंग में, देखा टर्निंग में ना ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत देता है. बाकी तो मज़ेदार, टर्न आएगा तो थोड़ा सा संभालो, बाकी मस्त है. हाँ, तो वो एक चीज़ है. तो मैं तो भाई I'm literally in full mood. Literally in full mood. देखा, one more चीज़, heating. Honestly, no. Although 2 सिलेंडर है, हीटिंग इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट फिर भी जनरली आप देखने जाओ इतनी टॉर्की मोटरसाइकिल के जो गर्मी का इशू होता है इसमें नहीं है. So yes, that is a best part, literally a best part about this bike. मैं इसको काफ़ी अच्छे से अभी तक चला रहा हूँ. इसको मैंने काफ़ी ट्रैफिक वगैरह में भी थोड़ा बहुत चलाया, हाईवे पे, हाई स्पीड पे, लोएस्ट गियर हाईएस्ट आरपीएम वगैरह वगैरह भी किया, बट नो हीटिंग इशू मुझे तो नहीं लगा. इससे याद आया कि चलो चेक कर ले, हाईएस्ट गियर लोएस्ट आरपीएम 6 गियर है अभी, एंड अपन जाते हैं 60 से नीचे जाते हैं. 2000 आरपीएम के आसपास बाइक चल रही है. 38 आई गेस, 38 इज़ दी मैक्स. नाउ लेट्स पुल. ओके, गुड, फेयर. टेक्स टाइम टू पुल अप, बट फेयर है. पर्सनली व्हाट आई फील इज गुड, इट इज़ गुड. Considerably it is good. So yes guys, that's I guess that's all for this video. इसका हाई स्पीड वाई स्पीड वाला मैं सीन नहीं करने वाला हूँ, वो सब इस चैनल पे नहीं मिलेगा. दूसरी कोई चैनल देखो, अच्छे से छपरी यूट्यूबर की देख लो, उससे मेरे को मतलब नहीं है. बट हाँ, अच्छी खासा पावर है. आपने ऑलरेडी टॉर्क, हाई टॉर्क वगैरह सब कुछ देख लिया है. लॉन्ग राइड रिव्यू में और डिटेल में अबाउट द राइडिंग एंड ऑल बात करेंगे. अगर लॉन्ग राइड के लिए बाइक अपन को मिलता है तो कमेंट करो, मैक्सिमम तो शायद लॉन्ग राइड के लिए कंपनी दे दे. सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप कि आपको ये वाला मस्त मज़ेदार बाइक पसंद आया होगा, ये वाला वीडियो पसंद आया होगा. और अगर आप बाइक ये वाला लेने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट करके मेरे को बताओ कि भाई आप ये वाला ले रहे हो. एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल.